Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 5 from unit number 3 of CBSE course, and the name of the prose is Robinson Crusoe discovers a footprint, which is adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. So what happens in this prose is Robinson Crusoe is a man who once was traveling in a ship, and what happened was he was lost in an island and he was alone in that island for many years, and he was longing, he was waiting for a friend, for a company. One day he discovers, he finds a footprint of a man in that island, and after that he finds out whether this island is inhabited by any other human being. So let us learn this prose in detail. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for the company. One day he discovers a footprint on the sand. Let us find out what he did then. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. Toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. I stayed a long time thinking, but became more and more confused. At last, I returned home, very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for a company. तो रॉबिन्सन क्रूसो एक वॉयेज जर्नी में गए थे शिप को यूज़ करते हुए, एंड ही शिप वॉज डिस्ट्रॉयड. तो क्या हुआ, उस वॉयेज में उनका शिप क्या हो गया, एकदम नष्ट हो गया. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. तो वो एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं और उस आइलैंड में वो कई सालों तक अकेले रहे, और ही लॉन्ग्ड फॉर ए कंपनी. लॉन्ग्ड का मतलब होता है वेटेड, और वो वेट कर रहे थे. कंपनी का मतलब होता है दोस्त. ही वेटेड फॉर ए कंपनी, ही वेटेड फॉर ए फ्रेंड. और वो कई सालों तक इंतज़ार करते रहे क्योंकि वो उस आइलैंड में अकेले थे. वो उनको एक दोस्त की ज़रूरत था. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. एक दिन क्या होता है, उस आइलैंड में वो डिस्कवर करते हैं. डिस्कवर यानी फाइंड आउट. What he find out, तो एक दिन उन्हें उस आइलैंड में एक
फुटप्रिंट दिखता है, यानी पाँव का चिन्ह दिखता है। तो उसको लगता है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नया ह्यूमन बीइंग तो आया है। तो उस फुटप्रिंट को देखने के बाद वो क्या करते हैं, इस प्रोज के थ्रू हम लर्न करेंगे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो एक दिन क्या हुआ, जब एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो समुंदर के किनारे जो उनका बोट था, उस बोट के तरफ वो जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, वो एकदम चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि उस समुंदर के किनारे तट पर उन्होंने फुटप्रिंट देखा। किसका फुटप्रिंट देखा? इंसान का फुटप्रिंट देखा उस रेत पे, सैंड यानी रेत पे। आई स्टूड अमेज्ड, वो एकदम चौंक गए, एकदम चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। ही स्टूड अमेज्ड, आई लिसनड, आई लुक्ड अराउंड मी। तो क्योंकि पैरों का चिन्ह था तो लगा वहाँ पे कोई इंसान है, तो एकदम चुपचाप खड़े होके यहाँ वहाँ सुनने लगे। तो यहाँ वहाँ जब वो सुनने लगे तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दिया। आई लिसनड, आई लुक्ड अराउंड मी, कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग। पहले उन्होंने आवाज़ सुनने की कोशिश की कि कोई इंसान है कि नहीं, तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दिया। उन्होंने अपने अगल बगल आसपास हर जगह खोजना शुरू किया, तो उनको अपने आसपास भी कोई नहीं दिखा। आई कुड नॉट नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना ही उन्हें कोई सुनाई दिया, ना ही कुछ उन्हें दिखाई दिया। लेकिन उन्होंने बस ये देखा कि सैंड पे किसी का फुटप्रिंट है। उन्होंने सैंड पे फुटप्रिंट डिस्कवर किया था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। तो वो कहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि जब आप ऊंचे स्थान पे चढ़ जाते हो तो वहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हो। तो वो कहीं पे चढ़ गए। आई लुक्ड अप टू लुक डाउन, चढ़ गए क्यों? नीचे देखने के लिए कि कोई इंसान आया है कि नहीं इस जगह पे। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। शोर का यानी समुंदर का किनारा, समुंदर का तट। तो आई वेंट अप द शोर मतलब वो समुंदर के किनारे यानी तट पे अपवर्ड डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि कोई इंसान है कि नहीं। एंड डाउन द शोर, फिर से वो वापस रिटर्न आके देखते हैं कि उस तट पे कोई इंसान है कि नहीं। बट इट वॉज नो गुड, आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। लेकिन वो इतना घूमने के बाद भी वो क्या क्या करते हैं, वो किसी ऊंचे स्थान पर जाके चढ़ते हैं, नीचे देखते हैं, हर जगह खोजबीज करते, कोई इंसान नहीं दिखता, ना ही कोई फुटप्रिंट दिखता है। फिर वो समुंदर के किनारे तट पे आते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, कहीं पे भी उन्हें कोई फुटप्रिंट नहीं दिखता। मात्र उस पूरे आइलैंड में उन्हें एक ही फुटप्रिंट दिखता है, वही फुटप्रिंट दिखता है। बट इट वॉज नो गुड, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वॉज एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। वो फिर से जाते हैं। फिर से क्यों जाते हैं? देखने के लिए कि अगर कोई रेत पे चलता है तो कॉन्टिन्यूस उसका फुटप्रिंट होना ज़रूरी है। लेकिन ये सिचुएशन में ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ही फुटप्रिंट था। तो वो वापस उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे उन्हें वो फुटप्रिंट मिला था और ये देखते हैं, वो फिर से सोचने लगते हैं क्या मैंने एक ही फुटप्रिंट देखा था या कई सारे फुटप्रिंट कंटिन्यू हो रहे हैं या खाली ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं ऐसे कुछ कल्पना कर रहा हूँ कि कोई इस रेगिस्तान में आया है। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. लेकिन फिर से जब वो वापस वहीं पे आते हैं उस जगह पे, वो बोलते हैं कि मैं गलत नहीं था, I was not mistaken. उसी जगह पे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट है और अभी भी वो एकदम क्लियरली अवेलेबल है उस सैंड पे। Toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो वो फुटप्रिंट में कौन कौन से हिस्से थे? टोस यानी होते हैं पैरों की उंगलियां, हील यानी होता है पैर का जो एड़ी होता है उसको बोलते हैं हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, और पूरा पैर का जितना भी हिस्सा होता है वो फुट का, वो पूरा उसका प्रिंट कहाँ पे गिरा था?
सैंड पे घिरा था। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। वो वहीं पे रुक गए और वो फुटप्रिंट को देखते रहे कि फुटप्रिंट आया तो आया है, लेकिन एक ही फुटप्रिंट क्यों है पूरा आइलैंड में, और कहीं पे क्यों फुटप्रिंट नजर नहीं आ रहा है। वो और भी ज़्यादा क्या कंफ्यूज हो गए, उलझ गए। उस मामले को सुलझाते हुए वो खुद में ही उलझ गए कि एक ही फुटप्रिंट क्यों आइलैंड में है। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps। जब वो बहुत समय वहाँ पे खड़े होकर सोचने लगे कि ये फुटप्रिंट आया कैसे, फिर वो कन्फ्यूज़न में चले गए। एट लास्ट उन्होंने क्या किया, वो घर आ गए। और जब वो घर वापस उस जगह से रिटर्न आ रहे थे, वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, वो हर 2-3 कदम चलते थे तो एकदम पीछे देखते थे कि कोई उन्हें फॉलो नहीं कर रहा। हर 2-3 स्टेप्स में वो लुकिंग बिहाइंड यानी पीछे मुड़ के देखते थे कि कोई मुझे पीछा तो नहीं कर रहा है, ये सोच के वो हर 2-3 स्टेप्स में पीछे देख रहे थे। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन। और वो जब वापस रिटर्न आ रहे थे तो उन्हें इतना डर लग रहा था कि हर 2-3 स्टेप्स में वो पीछे तो देख रहे थे, और जब भी कोई झाड़ी दिख जाता या अचानक से कोई पेड़ आ जाता तो उसको वो ये सोच लेते कि वो पेड़ नहीं है, वो झाड़ी नहीं है, कोई इंसान है जो उनका पीछा कर रहा है। When I came to my cave which I called my castle, जब वो उस फुटप्रिंट के पास से अपने गुफा तक पहुंच गए। वो अपने गुफा को क्या बोलते थे, कैसल। कैसल यानी महल। रॉबिन्सन क्रूसो अपने गुफा को कैसल यानी महल बोलते थे। आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेज्ड। तो जब वो अपने गुफा के पूरा नज़दीक आ पहुँचे, एकदम स्पीड में दौड़ने लगे, जैसे कि कोई उन्हें भगा रहा है, कोई उन्हें चेस कर रहा है, फॉलो कर रहा है। As if I was being chased, I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. उन्हें याद नहीं है कि वो जो केव के अंदर एकदम स्पीड से भाग के घुसे, जैसे कोई उनको पीछा कर रहा था। उन्हें ये याद नहीं है जो वो उन्होंने अपने केव के अंदर घुसा, वो केव एक लैडर यूज़ करके घुसे। लैडर यानी उनके केव के नीचे उन्होंने एक सीढ़ी रखा हुआ था, लैडर रखा हुआ था, उसको यूज़ करके उन्होंने अपने गुफा के अंदर प्रवेश किया, या डायरेक्टली वेंट बाय द होल इन द रॉक। जो केव होता है वो तो रॉक से बना होता है और उस रॉक में क्या होता है, होल होता है। या डायरेक्टली मैं उस होल के अंदर भागते भागते घुस गया, और वो जो होल को उन्होंने क्या नाम दिया था, केव के होल को उन्होंने नाम दिया था डोर। Or went into the hole in the rock which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. तो वो बोल रहा है कि मैं डर के मारे इतना तेज़ी से गुफा के अंदर भागा हूँ। मुझे ये भी याद नहीं है कि ये गुफा के बाहर जो लैडर था मैंने उसको यूज़ किया, या होल के अंदर मैंने डायरेक्टली एंट्री किया जिस होल को मैं डोर बोलता हूँ। मुझे ये भी याद नहीं है। मैं इतना तेज़ भागा हूँ जैसे कि कोई जानवर भागता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। तो रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहा है कि उन्हें इतना डर लगा उस फुटप्रिंट को देख के, क्योंकि एक ही फुटप्रिंट था, कि वो इतना डर गए कि वो उस रात भर बिल्कुल भी सो नहीं पाए। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। तो वो बोल रहे हैं कि वो जितना सोचे, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, वो जितना सोच रहे थे कि मैं वो फुटप्रिंट देखा, वो किसका है, क्या है, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। मैं जितना उस फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा था, मैं उतना ज़्यादा अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उस आइलैंड में कोई नहीं है, बस वो अकेले ही इंसान थे। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी। उन्होंने सोचा वो जो फुटप्रिंट है वो किसका होगा, वन ऑफ द सैवेजेस। सैवेजेस का मतलब होते हैं एकदम जंगली मनुष्य जिनका हाइट लंबा लंबा होता है और वो एकदम शरीर से चौड़े भी होते हैं। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड। मेनलैंड मतलब मुख्य भूमि से, मतलब आइलैंड के पास एक मेनलैंड मुख्य भूमि है, वहाँ से ये लोग कहाँ आ गए हैं,
भटकते भटकते, वॉन्डरिंग का मतलब ये होता है सिंपली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उन्हें ये लग रहा था कि जो जंगली मनुष्य है, सैवेजेस है, मेनलैंड से उनके जो जगह है, उनके मुख्य भूमि से आके भटकते भटकते कहाँ पहुँच गए हैं? टू द सी इन अ स्मॉल बोट, इस समुंदर के तट पे पहुँच गए हैं उनका एक छोटा सा बोट यूज़ करते हुए। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। वो बोल रहे हैं कि मेरा किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहे हैं जब ये सैवेजेस आए, जब ये जंगली मनुष्य वहाँ पे पहुँचे होंगे सी शोर पे, यानी समुंदर के तट पर, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि जब वो पहुँचे मैं उस समुंदर के तट पे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहे हैं कि उस समुंदर के तट पे मेरा बोट भी है। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो गया कि ये समुंदर के तट पे एक बोट है, यानी यहाँ पे और कोई इंसान भी है। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो वापस जाएगा अपने मेनलैंड में, यानी मुख्य भूमि में, और वो मुख्य भूमि में उसके जितने भी सारे दोस्त हैं उनके साथ ये जो जंगली मनुष्य है उन सभी को लेके आएगा, और ये समुंदर के तट पे आने के बाद मुझे वो लोग ढूंढेंगे, मार देंगे और मुझे खा जाएंगे। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहे हैं डर के मारे मैं गुफा से कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। आई लेड फियरफुल फॉर मैनी डेज, मैं वहीं रुका रहा उस गुफा के अंदर, वहीं ठहरा रहा बहुत दिनों तक, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मुझे मार ना दे। और प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और हमेशा प्रार्थना करता रहा कि मुझे रक्षा करो, कि मैं एकदम सेफली यहाँ पे रहूँ, कोई मेरा कोई नुकसान ना कर सके। इन डूइंग सो आई वॉज मच कॉम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। कुछ दिन गुफा के अंदर रुकने के बाद उन्हें कोई इंडिकेशंस नहीं मिला कि कोई उन्हें ढूंढ रहा है। जब उनको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ, जब उनको थोड़ा सुकून महसूस हुआ और थोड़ा वो फियर फैक्टर से बाहर निकल के आए, वो फिर से बाहर गए, फिर से गुफा से बाहर गए, ये इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन करने के लिए कि वो फुटप्रिंट वहाँ पे है या फिर से एक इमेजिनेशन था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन अभी भी जब वो गुफा से बाहर निकले, जब वो हर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने पीछे बार बार देख रहे हैं, लुक्ड बिहाइंड, पीछे बार बार देख रहे हैं, ये डर से कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी उनके अंदर थोड़ा बहुत डर है। ही वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा डर है। नाउ लेट अस लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोज। रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। Till now, Robinson was feeling very much frightened and was inside the cave for many days because he thought that the island is inhabited by savages. And after some time, after some days, he went out, but still he was frightened. And now let us see what happens later on. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the sea again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to the part of the beach since a long time. Secondly, I placed my foot alongside that footprint. It seemed larger than my own. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. So Robinson Crusoe says that वो 2-3 दिन लगातार अपने केव से बाहर निकले, और 2-3 दिन लगातार वो अपने केव से जब बाहर निकले
और उन्हें कोई भी नया इंसान नहीं दिखा, तो वो अंदर से थोड़ा बोल्डर हो गए। बोल्ड मतलब थोड़ा स्ट्रांग हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि उनमें कि ये आइलैंड इनहैबिटेड नहीं है, यहाँ पे कोई आए नहीं है। लेकिन I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. कई दिनों से वो समुंदर के किनारे यानी तट पे नहीं गए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया फिर से वो समुंदर के तट पे जाएंगे जहाँ पे उन्होंने पहले उस फुटप्रिंट को डिस्कवर किया था। I decided to measure it with my own foot mark. तो वो वहाँ पे जाने के सोचते हैं और वो ये भी डिसाइड करते हैं वो जो फुटप्रिंट है उस फुटप्रिंट से वो अपना जो फुट है उसको मेज़र करेंगे, यानी माप लेंगे कि उसका फुटप्रिंट जो है, जो उन्होंने डिस्कवर किया था, उसका फुटप्रिंट का लेंथ कितना है और मेरा फुट जो है उसका लेंथ कितना है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. तो वो समुंदर के तट पे जाते हैं, वहाँ पे फिर से वो फुटप्रिंट को डिस्कवर करते हैं। जब वो फुटप्रिंट के एकदम नज़दीक आते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल गया कि वो उनका फुटप्रिंट है ही नहीं, क्योंकि because I had not came to this part of the beach since a long time, क्योंकि वो बीच के उस जगह पे यानी समुंदर के उस तट पर वो कई दिनों से, बहुत दिनों से नहीं आए हुए थे, तो उनका फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत दिनों से वहाँ आए ही नहीं थे। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed longer than my own. Second reason वो ये दे रहा है, first reason वो वहाँ पे कई दिनों से आए नहीं थे तो वो फुटप्रिंट उनका हो ही नहीं सकता। सेकेंड रीज़न, जब वो फुटप्रिंट के नज़दीक पहुँचे और अपने फुट से उस फुटप्रिंट को मेजर किए तो वो कहते हैं कि वो फुटप्रिंट दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इनके फुट से। My fear returned, I went home again. तो फिर से उन्हें डर लगने लगा कि कोई ना कोई मेरे अलावा इस आइलैंड में तो है। फिर से वापस उनके मन में डर बैठ गया और वो वापस कहाँ चल दिए, अपने घर चलने लगे। Believing that there was someone there, और उनको ये बिलीव हो गया था खुद में कि उस आइलैंड में कोई ना कोई तो अभी आया है, लेकिन उनके नज़र में अभी तक वो इंसान नहीं पड़ा है। The island was inhabited. The island was occupied, यानी ये आइलैंड अब उन अकेले रॉबिन्सन क्रूसो का नहीं था बल्कि और कोई भी वहाँ पे रह रहा है। Inhabited मतलब occupied. Now let us learn some of the new words which we came across while learning the prose. Savages, wild people in primitive state. Savages का मतलब होता है जंगली लोग जो अपने एक इलाके में रहते हैं। Wild people in primitive state. और वो दिखने में कैसे होते हैं, थोड़े लंबे चौड़े होते हैं और डरावने होते हैं। Mainland, large continuous extent of land. Mainland यानी मुख्य भूमि, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ जगह। Wandered, go from place to place without a definite route. Wander यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बिना सोचे समझे, विदाउट अ डेफिनाइट रूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप डेस्टिनी तय करते हो और आपका ये प्लान नहीं होता कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, विदाउट अ डेफिनाइट रूट, यहाँ से वहाँ भटकना। वॉन्डरिंग यानी यहाँ से वहाँ भटकना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, बोल्डर यानी एकदम कॉन्फिडेंट सोच, मोर कॉन्फिडेंट। इनहैबिटेड, ऑक्युपाइड, ड्वेल्ड इन। इनहैबिटेड मतलब ऑक्युपाइड, वहाँ पे कोई और रह रहा है। द एरिया इज इनहैबिटेड बाय पीपल, यानी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज ऑफ क्लास 5 फ्रॉम यूनिट नंबर 3 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट. If you have any queries related to this prose, please write down in the comment section to be answered. If you feel this video useful, please like and share it to the maximum. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel in order to get latest notifications related to educational content in Hindi, Odia, English and Bengali language. Until then, take care, keep learning and keep sharing. Thank you.